اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا کل والا ٹاپک جو ہے وہ کافی حد تک رہ گیا تھا، تو جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، اور ہم اسی کو جو ہے وہ دوبارہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو ہمارا جو ہے کل والا ٹاپک بیسیکلی جو ہے وہ 8واں نرو تھا، جس کو ہم نے جو ہے وہ ویسٹیبولر نرو کا قرار دیا تھا۔ تو ہم نے جو ہے وہ بیسیکلی طور پر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو سننے کی قوت عطا کی ہے، تو یہ ویسٹیبولر مسل جو ہے نرو جو ہے بیسیکلی طور پر سننے کی صلاحیت میں جو ہے وہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اسی طریقہ سے ہمارے بیلنس کو برقرار رکھنے میں جو ہے وہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے بغیر جو ہے ہم جو ہے وہ کھڑے نہیں ہو سکتے، چل نہیں سکتے، اور ہمیں چکر آتے ہی اللہ تعالیٰ نے کان کے اندر بیلنس کا سلسلہ جو ہے وہ برقرار رکھا ہوا ہے۔ ہمارے کان کے اندر ایسا ہے کہ جو ہے وہ جگہ موجود ہے، یہاں پہ جو ہے وہ بیلنس کا سلسلہ جو ہے وہ اسی نرو کی وجہ سے، ویسٹیبولر کے دوسرے پارٹ کی وجہ سے ہم بیلنس کو اپنے کو برقرار رکھتے ہیں۔ اس میں بیسیکلی طور پر جب ہم آگے کو جھکتے ہیں تو وہ جگہ جو ہے وہ بیلنس کو برقرار رکھنے کے لیے تھوڑا سا آگے کو ہو جاتی ہے، اس میں جو ہے وہ اور رائٹ کو، لیفٹ کو، اوپر کو، نیچے کو، دائیں کو، بائیں کو، اس طریقہ سے جس طرف بھی ہم جو ہے وہ حرکت کرتے ہیں تو وہ ہمارا جو ہے بیلنس اس سے برقرار ہو جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ چکر بھی ہمیں آتے ہیں اور ہم آسانی سے چل سکتے ہیں، اور ہمیں جو ہے وہ دقت نہیں محسوس ہوتی اور گرنے کا جو ہے وہ اندیشہ نہیں ہوتا۔ اس طریقہ سے ہمارا جو ہے یہ نرو جو ہے بیسیکلی طور پر 8th نرو بھی پونس سے ملا ہوا ہے، اس کا دوسرا حصہ جو ہے سیریبرم سے ملا ہوا ہے۔ تو یہ دونوں جو ہے اس طرح سے جو ہے اس کو ویسٹیبولر آکولر نرو جو ہے کہتے ہیں۔ تو اس طریقہ سے اس میں بیلنس اور ہیئرنگ جو ہے وہ ہیئرنگ کا ایڈ جو ہے وہ شامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ ہم نے ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ مورے لگا دی ان کے دلوں پہ، وہ سن نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، اور وہ بیان نہیں کر سکتے کسی چیز کا۔ تو اس طریقہ سے وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ کافر ہے، وہ جو ہے وہ ان کے اندر یہ صلاحیت موجود نہیں ہے کہ وہ جو ہے اس قسم کی چیزوں کو سن سکے اور سمجھ سکے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب عقل سلیم سے نوازا ہے تو انسان جو ہے وہ مختلف چیزوں کو سن بھی سکتا ہے اور سمجھ بھی سکتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنا اظہار بھی کر سکتا ہے۔ یعنی کہ سننے کے بعد ہی ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت دی ہے۔ ہم جو سنتے ہیں اس کو ہی بول سکتے ہیں، ایسے الفاظ جو ہم سنتے ہیں وہی الفاظ جو ہم ادا بھی کر سکتے ہیں۔ یہی الفاظ جو ہم سنتے ہیں یہ ہمارے جا کے جو ہے پونس کے اندر جمع ہو جاتے ہیں، اور پونس کے ساتھ جو ہے یہ سیریبرم جو ہے موجود ہے بیسیکلی طور پر، اور یہ دونوں کوارڈینیشن سے جو ہے وہ ہمیں الفاظ کی ادائیگی اور الفاظ کو سمجھنے کی صلاحیت جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسی نرو کی وجہ سے ہمیں جو ہے رکھی ہوئی ہے۔ تو بیسیکلی طور پر یہ 8th کریڈیل نرو ہے، اور اس میں جو ہے یہ پون کے ساتھ جو ہے 2 حصوں میں جو ہے وہ اس کے حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ ایک جو ہے وہ آکولری ہے، یعنی کہ کوکلیئر ہے، کوکلیئر کم جو ہے کوکلیا اس کو بیسیکلی طور پر کہتے ہیں جی۔ اس میں جو ہے بیسیکلی ہیئرنگ کی جو ہے وہ ہمیں صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے۔ جو بھی میرے دوست جو ہے وہ جنہوں نے اس کو پڑھا ہوا پہلے تو وہ جانتے ہیں کہ کان کے اندر جو ہے ہمارے 2 کان اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے ہیں، ایک رائٹ اور ایک لیفٹ، تو دونوں کے اندر جو ہے یہ صلاحیت جو ہے وہ موجود ہے۔ تو اسی طریقہ سے دوسرا کمپوننٹ جو ہے ویسٹیبولر کا، اس کے ساتھ ہمارا کنسرن ہے ایکولیبریم یعنی کہ توازن۔ تو ہم جو ہے وہ توازن میں رہتے ہیں، تو توازن ہمارا جو ہے یہ بیسیکلی برقرار رکھتا ہے، اور یہ بیلنس کو جو ہے وہ برقرار رکھتا ہے، ہمارے توازن اور بیلنس کو برقرار رکھتا ہے۔ اگر یہ بدلے اس میں جو ہے کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی جو ہے تبدیلی ہے، زیادتی کمی اور اس طریقہ سے کوئی اور چیز جو ہے وہ ایڈ ہو جائے تو اس کی وجہ سے ہم جو ہے گرنے کے چانسز ہمارے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، تو ہم صحیح طریقہ سے چل نہیں سکتے۔ تو بیسیکلی طور پر یہ والا حصہ جو ہے یہ ہمارا جو ہے وہ سیریبرم کے ساتھ جو ہے وہ
اٹیچ ہے، جس کی وجہ سے ہم آسانی سے چل سکتے ہیں اور اپنے آپ کا بیلنس جو ہے برقرار رکھ سکتے ہیں۔ دائیں اور بائیں طرف سے بھی جو ہے وہ آگے پیچھے کی طرف سے، اوپر نیچے کی طرف سے ہم جو ہے اپنے آپ کو مکمل طور پہ صحیح طریقے سے چل سکتے ہیں، کھڑے ہو سکتے ہیں، لیٹ سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے کہ کرشمے ہے سارے، تو جن کو سمجھنا اور جاننا ہمارے لیے جو ہے وہ بڑی باعث فخر بھی ہے اور باعث رحمت بھی ہے۔ اس طرح سے جو ہے اگر ہم جو ہے وہ سب سے پہلے اس کی ہیئرنگ کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، اس کے بعد بیلنس کی بات کریں گے۔ دونوں ہی جو ہے انتہائی امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ ہیئرنگ سسٹم جو ہے جس کی وجہ سے ہم سن سکتے ہیں، یعنی کہ جو ہے تو اگر یہ چیز نہ موجود ہو، قدرتی جو ہے بعض بچوں میں بہت زیادہ افسوس کے ساتھ اتنے خوبصورت بچے ہمارے پاس آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صلاحیت نہیں دی ہوتی کہ وہ سن نہیں سکتے۔ اتنے اتنے پیارے، اتنے اتنے خوبصورت بچیاں اور بچے ہمارے پاس آتے ہیں، بڑے بھی اس طرح سے آتے ہیں، ڈیفنس ان کے اندر جو ہے وہ موجود ہوتی ہے، یعنی کہ وہ ڈیپ ہوتے ہیں، کان سے سننے کی صلاحیت ان میں جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ اور بعض بزرگ بھی ہمارے پاس آتے ہیں بیچارے اتنے زیادہ جو ہے وہ، اور ان میں جو ہے صلاحیت اللہ نے دی ہوئی ہوتی ہے، لیکن ان کو غلط استعمال کی وجہ سے یہ صلاحیت جو ہے وہ کھو دیتے ہیں، یعنی کہ ان کے اندر جو ہے وہ ہیئرنگ پاور جو ہے آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہے۔ تو جس کی وجہ سے بڑا دیکھ کے ان کو بھی دکھ ہوتا ہے، وہ چڑچڑا پن ان کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ جب اونچی آواز میں وہ کہتے ہیں ہاں جی کیا کہا جی، کیا فرما رہے ہیں آپ جی، تو بڑا جو ہے وہ دل کو دھچکا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی بڑی طاقت جو دی تھی، لیکن غلط استعمال کی وجہ سے، بعض ادویات کے غلط استعمال کی وجہ سے یہ جو ہے پرابلم جو ہے وہ ان کے اندر کریٹ ہو گیا۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شاید آپ پہلے بھی میں نے ایک بات کی تھی کہ ہمارے جو ہے کچھ احباب جو ہے وہ دوست بچوں میں جو ہے وہ ایک قطرے فروخت کرتے ہیں اور کہتے ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ جن کی سماعت ختم ہو چکی ہو یا ان میں نہ ہو تو ہم یہ قطرے دے کے جو ہے اس کو سماعت کو برقرار کروا دیتے ہیں، یعنی کہ سماعت دوبارہ جو ہے وہ بحال ہو جاتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ان کا یہ دعویٰ درست ہے، کیونکہ میں نے تو قطروں کا استعمال نہیں کیا، لیکن سائنٹیفکلی پروف جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی کا جو ہے ویسٹیبولر آکولر اور کوکلیا جو ہے نرو جو ہے وہ ڈسٹرب ہو چکا ہو، کام کرنا چھوڑ چکا اور قطرے ڈالنے سے جو ہے وہ اپنی صلاحیت کو برقرار کر سکتا ہو، یا کوئی ایسا قطروں میں ایسی خصوصیت موجود ہو کسی بھی قطرے کے اندر یا ڈراپس کے اندر، جو ایئر ڈراپس ہوتے ہیں ان کے اندر جو سکتا ہے کسی کو موجود ہو، لیکن جو ہے سائنٹیفکلی ابھی تک جو ہے کسی بھی طور پہ جو ہے یہ پروف نہیں ہو سکا۔ البتہ جو ہے بہت سے لوگ جو ہے وہ ویکس کی وجہ سے یا خشکی کی وجہ سے اور یا کہ کسی اور وجوہات کی وجہ سے، کانوں کے انفیکشن کی وجہ سے، یا کسی اس طریقے سے کانوں کی بہت سی بیماری ہے جن کو ابھی ہم ڈسکس کریں گے، ان کی وجہ سے بھی جو ہے بعض اوقات جو ہے وہ سننا جو ہے ان کی صلاحیت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، یا کہ بعض اوقات میں نے ایسے بھی افراد دیتے جن میں جو ہے وہ سننے کی صلاحیت بہت بڑھ جاتی ہے، مگر اس میں جو ہے وہ ارتعاش آ جاتا ہے، تیزی آ جاتی ہے، تو وہ بڑی تیزی سے جو ہے وہ ہر قسم کے جو ہے ٹیمپیننگ میمبرین میں جو ہے کوئی خرابی آ جاتی ہے، تو جس کی وجہ سے وہ سننے کی صلاحیت جو عجیب طریقے سے جو ہے بڑھ جاتی ہے۔ یا اسی طریقے سے ہمارے جو ہیمر ہے اور اسی طرح 3 ہڈیاں جو ہے جن کے اندر سے جو ہے یہ آواز بیسیکلی طور پر ایڈٹ ہوتی ہے، اور پھر آگے جا کے جو ہم ہمیں آواز سنائی دیتی ہے، اور ہماری آواز کی پچ چھوٹی بڑی آواز، اور اسی طریقے سے ہم جو جان سکتے ہیں کہ آواز کس قسم کی ہے۔ تو جانور کی آواز، گھوڑے کی آواز، گدھے کی آواز، کتے کی آواز کو ہے، اور اسی طریقے سے ہم جو ہے ریڈیو کی آواز، ٹی وی کی آواز، اور سب آوازوں میں جو ہے ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں، اور ہمیں جو ہے وہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ قسم کی آواز ہے۔ ہمارا پیارا لیکچر جو ابھی سن رہے ہیں، یہ اس سے پہلے جتنے بھی لیکچر ہو چکے ہیں وہ آپ نے جو ہے کانوں کی مدد سے سنے ہیں، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اس کی وجہ سے ہم جو ہے اور اسی طریقے سے آئز کے ساتھ بھی ان کے ساتھ جو ہمارا کنٹیکٹ ہوتا ہے، کام دیکھ کر اور سن کر لوگوں چیزوں کو جو ہے بڑے اچھے طریقے سے جان سکتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو بیان بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ جو میں نے سنا ہے یا دیکھا ہے، دیکھ کے پڑھا ہے، اس کو ہی میں بیان کر رہا ہوں۔ بیسیکلی طور پر یہ دونوں جو ہے وہ آپس میں کوآرڈینیشن کرتے ہیں، یعنی کہ دیکھنے کی صلاحیت اور سننے کی صلاحیت، جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ کسی بھی چیز کو جو ہے وہ دونوں سائڈوں سے
इनकी आंखों से देखकर और कानों से सुनकर जो है वो उसको जान सकते हैं, परख सकते हैं और उसके बारे में उसका नाम दे सकते हैं कि ये फलां चीज है, ये फलां चीज है, ये बल्ब है, ये रोशनी है, ये अंधेरा है। और ये इस तरीके से जो है हम इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, चांद सूरज और दीगर चीजों को हम जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसी तरीके से ये सारी अल्लाह की जो है वो नेमते, हमने हर चीज का जो है नाम रखा हुआ है। जैसे कि मैंने ये अभी मोबाइल पकड़ा हुआ है, इसका हमने नाम रखा हुआ है, ये मोबाइल है। तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी सलाहियत है जिसको जो है वो जो अल्लाह ताला ने हमें जो है इंसान को जो है वो अता की है। तो यही जो है वो डिफ्रेंशिएट करती है। जानवर भी सुनते हैं लेकिन हम वो बोल नहीं सकते, इतना ज्यादा नहीं सुनते, उनके कानों में जो है वो आवाज की, तो वो सुनते तो है। देखिए कि आप जो है वो कुत्ते को बुलाते हैं तो वो आपके पास चला आता है, बिल्ली को बुलाते हैं, जो पालतू जानवर होते हैं वो भी आपके पास चले आते हैं, तो वो आपकी आवाज को सुन के समझ जाते हैं। इसी तरीके से कुत्ते जब भौंकते हैं तो उसकी आवाज को भी सुन के जो है वो बहुत से लोग जो है वो डर जाते हैं और हमें जो है वो एहसास होता है कि ये वाला जो है प्रॉब्लम क्रिएट है। हर अल्लाह ताला ने हर चीज के अंदर जो है वो कोई ना कोई सलाहियत रखी है, लेकिन हमारे अंदर जो है वो अल्लाह, क्योंकि हम अशरफुल मखलूकात हैं, तो ये एक सुनने और बोलने की जो ताकत है और खास तौर पे देखने की ताकत जो है वो अल्लाह ताला ने इसी तरीके से हमारे अंदर जो है वो रखी हुई है। तो हम जो है वो बाद लोगों के अंदर जो है ये सलाहियत जो है वो मौजूद नहीं होती। बच्चों से हम स्टार्ट करते हैं कि ये जो है वो सुनने की सलाहियत जो है वो मौजूद नहीं होती। तो पुराने जमाने में जो है पहले हम जो है वो, कल भी हमने बात की थी कि ताली बजा के हम जो है वो बच्चे को अपनी तरफ मुतवज्जा करते थे। जो बच्चे इस तरह से मुतवज्जा हो जाते थे तो हम कहते थे कि ये बच्चा सुन सकता है। इसी तरह से चुटकी बजा के भी जो हम जो है वो आवाज को जो है वो पैदा करते थे और जिसकी वजह से बच्चा जब सुनता था तो वो हमारी तरफ मुतवज्जा हो जाता था। तो एक बड़ी बचपन से बड़ी एक जबरदस्त किस्म की कहानी सुनी हुई है हमने। तो ये शुगली भी है और ये जो है बधाइयाँ भी है कि ताकतवर कौन। तो उसमें जो है एक पहलवान जो बच्चे को डांटता है तो बच्चा ऊंची ऊंची रोना शुरू करता है, जबकि जो है वो एक जो है उसकी माँ या उसका बाप जो है उसे प्यार करके उसको अपने पास बुलाता है और उससे प्यार करता है, तो वो बच्चा जो है वो रोना चुप कर जाता है और खामोश हो जाता है। तो इस तरीके से जो है ऊंची आवाज में बोलने वाले जो है वो बाज का पहलवान नहीं होते। तो इसलिए जो है वो नीची आवाज से बोलने वाले जो है वो, इसी तरह ड्रम की आवाज बच्चे बहुत पसंद करते हैं, यानी कि ढोल की आवाज। और इसी तरीके से तोप की आवाज से बाद बच्चों के कानों के पर्दे जो है वो खराब हो जाते हैं, मतलब फट जाते हैं और उनमें जो है टेम्पैनिंग मेमोरी के अंदर जो है इंफॉर्मेशन जो है कि चेंजेस आ जाती हैं और बाद का फट भी जाते हैं बाद लोगों के। इतने ज्यादा जो है तेज आवाज जो है वो हमें जो है वो बाद का नुकसान देती है। तो इस तरीके से हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने कानों के पर्दों की हिफाजत करें और इस तरीके से अपने कानों की भी हिफाजत करें। इसमें वैक्स वगैरह जो है वो जमा ना होने से बाद लोग जो है वो अक्सर खारिश करते रहते हैं। कानों के अंदर जब खारिश करते हैं तो वो तीली से जो है और इस तरह से जो है वो सेप्टिक चीजों से खारिश करते हैं, जिसकी वजह से काटल बर्ड अच्छी तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। वो वैक्स को निकालने की कोशिश करते हैं, कार को साफ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे बाद का जो है वो कान के अंदर जख्म या जो इन्फॉर्मेशन या क्या और भी इस तरीके से जो है वो कान के अंदर स्लाइड डालने से जो है वो कई प्रॉब्लम जो है कान के अंदर वो क्रिएट कर लेते हैं। तो इसलिए जो है हमेशा बाहर और क्वालिफाइड जो है वो फिजिशियन से ही हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है क्वालिफाइड तबीब से जाके अपने कानों को चेकअप करवाए। अगर किसी भी कानों के अंदर जो है कोई भी डिफॉर्मेलिटी, कोई भी जो है वो हमें सुनाई नहीं देता या कोई भी इस किस्म का प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो रहा है, तो आजकल तो बहुत ज्यादा जो है कानों के प्रॉब्लम जो है वो हो रहे हैं, क्योंकि शोर और गुल इतना ज्यादा है कि शोर की आवाज से जो है वो हर बंदा जो है वो कानों को मुतासर होता है। और इस कदर कभी गाड़ी का शोर है, कभी पापा का शोर है, कभी जो है वो ड्रिलों का शोर है, कभी मशीनों का शोर है, और कभी जो है वो किसी चीज का शोर है, कभी जो है वो एम्बुलेंस की रात सारी जो एम्बुलेंस जो है हॉस्पिटल में आती रहती है, उनकी जो सायरन की आवाजों का शोर है। इसी तरीके से गाड़ी की आवाजों का शोर है और सारी रात जो है इस तरीके से दिन और रात में कोई फर्क नहीं छोड़ा, तो रात को भी जो है वो शोर है और दिन को भी शोर है, जिसकी वजह से कान जो है कितने जो है वो बर्दाश्त करेंगे और कान जो है वो मुतासर हो जाते हैं। और इस तरीके से कानों की खटखट की वजह से जो है वो हमारा दिमाग के अंदर भी जो है वो शोरगुल और एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हम हो जाते हैं। तो कानों की वजह से और भी कई प्रॉब्लम जो है वो हमें पैदा होने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हमें जो है कानों की हिफाजत करनी चाहिए कि जब भी जो इस तरह के, और खास तौर पे आजकल बच्चे जितने भी जो है वो ईयरफोन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं।
कानों के अंदर जो है वो टूटियां लगा के, मैं एयरफोन को टूटी कहता हूँ कि पंजाबी जुबान में, तो वो टूटियां लगा के पता नहीं उनको, वो सड़क पे भी जा रहे हैं और गाड़ी पे भी बैठे हुए, और उसने मुझे वो लगाई, उसको कोई पता ही नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। और बाद औकात हाथ में मोबाइल पकड़ के भी जो है वो सड़क पे जो है वो अपनी अपनी जान की हिफाजत भी नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो है वो अगले की जान को भी खतरा कर जो है वो डाल रहे हैं। आज मैं भी सब्जी मंडी के पास से गुजर रहा था, तो वहां पे एक बंदा जो है वो, उसको पता ही नहीं कि सामने से कोई बंदा आ रहा है। तो इतनी मुश्किल से मैंने खुद अपने आप को बचाया कि वो मतलब मोटरसाइकिल पे इस कदर जो है वो अपने चीजों में मशगूल था कि उसको पता ही नहीं कि मैं जो है वो सफर कर रहा हूँ और मैं मोटरसाइकिल या जो है वो गाड़ी चला रहा हूँ। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा जो है हमें जो है ये प्रॉब्लम जो है क्रिएट जो है, कानों को हमने खुद ही बेड़ा गर्क इसका करते जा रहे हैं कि ये जो कान वाली जो है वो ये ईयरफोन जो है बेसिकली तौर पर कान के पर्दे को जो है बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, और मुसलसल लगाने से जो है हमें ऊंचा सुनाई देना जो है शुरू कर दे। तो जिसकी वजह से हमें जो है ये बड़ी जो कानों की प्रॉब्लम जो है, कान अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। तो कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है वो ईयरफोन का जो है वो कम से कम इस्तेमाल करें, और हम जो है जहाँ भी जो है उसका मुनासिब जो है वो इस्तेमाल करें। ये भी अल्लाह की नेमत है, चले सभी ले, लेकिन इसको जो है वो बड़े एहतियात से इस्तेमाल करें। तलावत के लिए इस्तेमाल सुन सकते हैं आप। और ये तीसरी नंबर पे जो लाउड स्पीकर इतने इतने बड़े जो है वो, और स्पीकर इतने ज्यादा बड़े जो है वो लगा के जो है वो अपने आप को जो है वो मतलब कि मैं अपने जो हजरात है मतलब जो है वो भी इस तरीके से तकरीर और इस तरीके से जो अपने अल्फाज को जो है इस तरीके से बयान करते हैं, इतनी ऊंची आवाज में जो है वो अपने आप को जाहिर करने की कोशिश करते हैं। और एक तरफ जो है वो एक मस्जिद से आवाज आ रही है, दूसरी तरफ जो है वो उससे ज्यादा आवाज जो है दूसरी मस्जिद से आ रही है, और तीसरी मस्जिद से भी इससे भी ज्यादा आवाजें जो है वो गूंज रही है हमारे कानों में, जिसकी वजह से हमारे कानों के अंदर जो है वो अजीब किस्म का जो है वो शोरगुल और अजीब किस्म की जो है वो हर वक्त टेंशन जो है वो हमें महसूस होती रहती है। तो इस तरह से हमारे कानों के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो हमें होते हैं। हमें कानों के अंदर सीढ़ियाँ चलने की आवाजें, शोरगुल की आवाजें, चक्की चलने की आवाजें, गूं की आवाजें, और इस तरीके से बड़ी अजीब किस्म की आवाजें जो है वो आती हैं हर वक्त। जो है ये हमारा नर्व जो है बेसिकली तौर पर, जिसको हम जो है वो वेस्टिबुलर कोक्युलरी नर्व जो है, कोक्लियर नर्व जो है उसको कहा है। तो उसमें जो है हर वक्त एट्थ नर्व बेसिकली तौर पर ये है, तो उसमें हर वक्त डिस्टर्बेंस रहती है, हर वक्त हमारा दिमाग पॉन्स के अंदर इरिटेशन जो है वो रात दिन 24 घंटे जो है वो इतनी ज्यादा शोरगुल होता है कि हम जो है वो इसको जो है वो बयान नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें जो है वो अब हम इसका थोड़ा सा जो है वो मुआयना की तरफ आते हैं कि हम जो है वो किसी मरीज जब हमारे पास आता है तो उसको जो है वो कैसे एग्जामिनेशन करते हैं। तो बच्चे को मैंने बताया कि चुटकी वगैरह से जो है और इस तरह से ताली लगाने से हम उसको बचपन में चेक कर लेते थे, लेकिन आप टेक्नोलॉजी जो है वो आ गई है। ट्यूनिंग फोक एक जो है वो आला है जिसके अंदर वाइब्रेशन की जो है वो सलाहियत जो है मौजूद होती है, इसके फ्रीक्वेंसी इसके ऊपर लिखी होती है, जो कि 256 या के 515 जो है इसके ऊपर लिखा होता है। तो जब उसको जो है वो किसी पैड के साथ टच किया जाता है तो उसके दो ऊपर वाले सिरे होते हैं और एक नीचे वाला सिरा होता है। तो उसको जो है आप लगाते हैं जी कान के जो है वो प्रोटन के अंदर, और कार के बरूनी हिस्से पे दोनों पे जो है वो लगाते हैं, तो उसकी आवाज जो है मरीज को सुनाई देते हैं। तो अगर मरीज जो है वो प्रोटोन हिस्से पे यानी कि जो है वो कान के पीछे वाला जहाँ पे हड्डियां जो है वो वाक़ है उस हिस्से से आवाज जो है बेहतर सुन रहा है, तो इस टेस्ट को हम जो है वो रनीस टेस्ट कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये रनीस टेस्ट जो है वो पॉजिटिव है। तो अगर जो है वो मरीज जो है वो कान के प्रोटोन ग्लैंड से इतना ज्यादा जो है वो नहीं सुन रहा, बल्कि जो है वो कार के बाहर की हिस्से से जो है वो सुन रहा है, तो इसका मतलब ये है ट्यूनिंग फोक की आवाज। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है वो रिलीज टेस्ट जो है वो नेगेटिव है। इसी तरीके से हम जो है वो कोई भी ट्यूनिंग फोक जो है इस्तेमाल करके मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज का जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से दूसरा टेस्ट हमारा जो है वो जिसको वेबर टेस्ट कहते हैं, इसमें बेसिकली तौर पर जैसे कि हमने रनिंग टेस्ट के बारे में बात की, इसमें जो है वो आप जो है वो फ्रंटल बोन के ऊपर या के टेम्पोरल बोन के साथ जो है ट्यूनिंग फोक का लास्ट हिस्सा जो रखते हैं,
और उसको दाएं और बाएं तरफ उसको जो है फील करने की कहते हैं कि राइट ईयर से आप कितना सुन रहे हैं या लेफ्ट ईयर से वो कितना सुन रहा है। तो इस तरीके से वो ट्यूनिंग फोक की जब जो है वो इरिटेशन या उसमें ताश पैदा होता है, तो हमें जो है उसकी की एक आवाज जो है, जो कि उसके जो है फोक दोनों जो है सिरे जो है वो जब उसमें अल्लाह ताला उसमें उस आले में इतनी ज्यादा सलाहियत होती है कि उसकी आवाज जो है वो दोनों कानों से बराबर जो है सुनाई देनी चाहिए जब उसको हम फ्रंटल बोल के ऊपर रखती हैं। तो इस तरीके से अगर दोनों कानों से सही जो है वो आवाज हमें जो है प्रॉपर महसूस हो रही है, हम अपने ऊपर भी रख के जो है आवाज सुनते हैं तो हमें जो प्रॉपर महसूस होती है। तो इसका मतलब ये कि टेस्ट जो है वो पॉजिटिव है। अगर नहीं जो है महसूस हो रहा तो हमें जो टेस्ट जो है वो नेगेटिव, हम इस टेस्ट को जो है वो करा देंगे। इसी तरीके से बोन कंडक्शन जो है इसको भी अभी हमने बात की। तो जो प्रोटेट ग्लैंड जो आंख के पीछे जो है प्रोटेट हिस्सा है, इसके ऊपर जब हम ट्यूनिक फोक को रख के जो है वो बोन की मदद से जो है वो इसको देखते हैं यानी कि सुनते हैं। यानी ट्यूनिक फोक की आवाज जो है बोन के ऊपर हम रख के सुनते हैं, तो अगर जो है वो हमें इसकी कंडक्शन की आवाज जो है वो मुकम्मल तौर पे सुनाई देती है, यानी कि उसके टच जब हम निचला हिस्सा करते हैं या ऊपर वाला हिस्सा करते हैं तो बोन के साथ जब ये अटैच होती है तो कंडक्शन की आवाज जो है वो आती है। तो इसका मतलब ये है कि हम कान के तीन हिस्से करते हैं ना, एक बैरूनी हिस्सा जो है, एक मिडिल हिस्सा है, और एक जो है वो आखिर वाला जिसको जो लेके जा रहा है बेसिकली जो है वो नर्व का हिस्सा है। तो इस तरीके से अगर ये वाला दरमियानी वाला हिस्सा जो है वो अपना सही काम कर रहा है, यानी कि जिसमें बोन्स का जो है वो थड़ा और रकाब की जो है हैमर बोन और साथ दीगर दो बोन जो है वो अपना मुकम्मल तौर पर जो है वो काम कर रही है। तो इसका मतलब यह है कि इसके कंडक्शन की हालत बेहतर है और बैरूनी कान के अंदर को प्रॉब्लम है, बैरूनी कान के अंदर फिंसी या इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन वगैरह जो है वो हो सकती है। तो इस तरीके से हम जो है वेस्टिबुलर डिवीजन का एक और टेस्ट भी कर सकते हैं, जिसको जो है वो जिसकी वजह से हम जो है उसकी जो है वो एक और सलाहियत जो है इसके अंदर जो है वो मौजूद होती है, जिसको नेस्ट मैगमस कहते हैं। तो ये जो है ये भी सलाहियत हम उसको जो है वो जान सकते हैं। मरीज को थोड़ा सा जो है वो जब हम लटाते हैं, लटाने के बाद उसका जो है वो सिरा जो है, सर जो है बेसिकली तौर पर बेड से थोड़ा सा आगे ले जाते हैं जिसपे हम लटाया होता है। तो लटाने के बाद उसके दोनों जो है वो राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे हाथ रखते हैं और उसके गर्दन को जो है वो ढीला छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से राइट या लेफ्ट साइड को उसको घुमाने से हमें जो है वो मरीज बताता है कि मुझे जो है वो क्या महसूस हो रहा है। तो जिसकी वजह से हमें जो है वो कान की सुनाई देने का जो है वो पता चल जाता है कि कान में इसको सुनाई दे रहा है, ये ऊंचा सुनाई दे रहा है या के नीचे सुनाई दे रहा है, और इसी तरीके से कान से आवाज जो है वो नहीं आ रही है। तो इस तरीके से हम जो है ये टेस्ट करने के बाद जो है ये किसी नतीजा पर पहुंचते हैं कि इसके अंदर कोई जो है वो कितनी सलाहियत जो है वो मौजूद है। इसी तरीके से आजकल बिल्कुल जदीद दौर आया है और जिसमें जो है बड़े जबरदस्त किस्म की मशीनरी जो है वो आ गई है, जिसकी वजह से हम कान की जो है वो सलाहियत को, यानी कि कॉकलियर की सलाहियत को और कान के जो है वो इस वेस्टिबुलर कॉकलियर की मसल की असाब के सलाहियत को, नर्व की सलाहियत को हम जो है वो ऑडिटोरी मीटर से जो है वो जान सकते हैं। इसको जो है ऑडिटोरी मीटर कहते हैं। तो ये बड़ा जबरदस्त किस्म का एक आला है, दोनों कानों के अंदर जो है वो लगा दिया जाता है, जिसकी मदद से जो है वो जब दोनों कानों के अंदर ये इसकी जो है वो एक एक जो है वो सलाख लगा दी जाती है, तो स्लाइड लगा दी जाती है, जिसकी वजह से उसके अंदर स्पीकर होते हैं तो उसको ऑन और ऑफ किया जाता है। उसकी आवाज जो है वो मुख्तलिफ जो है वो नवीयत की इसके अंदर जो है हड़ार्ट्स के सोच पे एच जेड जिसको कहते हैं, तो ये इस तरीके से पैदा होती है। तो बड़ा इस तरीके से जो है वो चार्ट के साथ उसने जो है उसी ऑडिटोरी मीटर के ऊपर जो है बड़ा जबरदस्त किस्म का एक दिया हुआ, जिसकी वजह से वो बाहर आ जाता है। इतनी इसकी सलाहियत जो है वो इसमें जो है वो सुनने की सलाहियत मौजूद है या नहीं। अगर नहीं हो तो मुझे जो है राइट और लेफ्ट दोनों के नजर आते हैं। मुझे अगर ज्यादा हो तो जो है ये ज्यादा वाला सिंबल आ जाता है, और अगर कम हो तो वो कम वाला सिंबल आता है। तो अगर जो है वो बिल्कुल ना हो तो वो जीरो वाला सिंबल आ जाता है। तो उसके ऊपर वो ट्रैक जो है वो मुद्रा आर्ट्स की जो है वो
HZ की जो है वो फ्रीक्वेंसी उसको प्रोवाइड करते हैं दोनों कानों को, राइट और लेफ्ट को। तो इस तरह से ऑडिटोरी जो है रिजल्ट जो है वो आता है उस चार्ट के ऊपर। तो उसके उसकी पता चलता है उसमें जो है वो कितनी सलाहियत जो है सुनने की जो है मौजूद है या कि नहीं है। तो इस तरीके से जो है ये कान का हम जो टेस्ट करके इसका खास तौर पे छोटे बच्चों का जब टेस्ट करते हैं तो हमें जो है वो ये पता चलता है कि कान के अंदर जो है ये सलाहियत जो है वो कितनी ज्यादा जो है मौजूद है या कि नहीं है, कि वो सुनने की सलाहियत जो है वो रखता है। बड़े बच्चों को जिसकी मर्जी जो है वो ऑडिटोरी मीटर से जो है उसको जान सकते हैं, और जो है वो हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर जो है कितनी सलाहियत जो है वो कुदरत ने रखी हुई है। सुन सकता है बच्चा या नहीं सुन सकता, बड़ा सुन सकता है या नहीं सुन सकता, इसमें कमी जो है वो है या कि नहीं है। तो ये सारी जो है वो हम वेस्टिबुलर ऑकुलर नर्व की सलाहियत को, और उसके अंदर जो है वो जाने वाली जो है वो पोल्स के अंदर, और उसके बाद सेरिब्रम के अंदर जो है जाने वाली सलाहियत, और उसके अंदर जो जानने वाली सलाहियत को हम जो है वो जान सकते हैं, और उसकी तब्दीलियों के बारे में भी जो हम जान सकते हैं। ऑडिटोरी मीटर जो है वो एक बहुत बड़ी जो है वो औजार है, जिसकी वजह से हम जो है वो इसकी मदद से बहुत ज्यादा लोगों के कानों के मुख्तलिफ अमराज को भी, और खास तौर पर जो है मसल इस नर्व के अमराज को हम जो है वो ऑडिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, और हमें जो है वो अंदाजा हो जाता है कि इस किस्म की जो है रुकावट और इस किस्म का जो है वो इसकी सिचुएशन है, ये क्योरेबल है या कि नहीं क्योरेबल। तो बाकी इंशाल्लाह दूसरा हिस्सा जो है बैलेंस और इसके डिजीजेस को हम जो है वो इसके बाद जो है नेक्स्ट टाइम जो है वो डिस्कस करेंगे। कल अल्लाह ताला हमें हिम्मत और तौफीक दे कि अल्लाह हमें जिंदगी दे कि हम कल इसको जो है मजीद जो है वो जारी रख सके। मुझे भी अपने एक सांस का नहीं पता, तो इस तरह से जो है वो मैं दावा नहीं करता कि कल भी मैं हूँगा या नहीं हूँगा, तो ये अल्लाह ताला की एक अनायत है। तो इंशाल्लाह जो है इंशाल्लाह इसीलिए हम कहते हैं कि अल्लाह ताला जो है हमें हिम्मत देगा, तौफीक देगा, कल हम इसको जारी रखेंगे, और अल्लाह की नेमतों को जो है हम जानते हुए इनके अंदर जो भी डिफॉर्मिटीज या कमी पेशी और इनका जो है वो बीमारियां होती है, यानी पैथोलॉजिकल सिम्टम होते हैं, उनको हम दूर करने की एक तबीब का काम यही है कि उसको दूर करने की सलाहियत जो है वो उसके अंदर जो है मौजूद है। इस तरीके से अल्लाह ताला मुझे वो कान अता फरमाए, डॉक्टर की दवा के अंदर है कि जिसकी वजह से मरीज के जो है वो भी आज सुन सकूं, जो कि इसके जो है वो हल्की सी भी दर्द किया जो सुन सकूं। तो ये मेरी दुआ है। तो अल्लाह ताला जो है सब तबीबों को इसी तरीका से जो है वो मरीज की जो है वो जो उसके जो है हल्की सी दर्द की उसको भी हो, उसको भी सुनने और दूर करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया सर।